Hello, students. So today, this is the next question for the constraint conditions. So in my last video, I told you one specific condition of constraint condition. Through one question, I had explained you that how to tackle that condition. Now see here, we have two dogs, M1 and M2, and we are pulling the force, pulling block M1 by a force F. All the pulleys and strings are massless, that is ideal. And one end of the string is connected to the fixed hook on the ground. जो string का एक end है वो एक fixed hook है on the ground, it is connected to that. So we have to calculate that what will be the acceleration of m1 and m2, right? So look at this. There are two ways of relating the acceleration of m1 and m2 by the constraint condition that the total length of the string will be what? Constant. During the motion, the total length of the string will remain what? Constant. This is the constraint condition. So under that condition, we have to relate that what will be the acceleration of M1 and M2 means how they will be related. Let's see here, if I take that, look at this. If I take that, tension in the string is T. We T throughout. Now for this block is backward. Here also is backward, this T backward. Here T forward direction, this T forward direction, this T forward direction, T forward direction. So see for the block M1, equation becomes what? For the block M1, equation becomes F minus GT, T plus T plus T. So this T and T, so this will be 2T here, and 2T will be backwards, is equal to M1 into A1. Now see for the block M2, T and T, so this will be 2T here and 2T here. So this will be what? 4T is equal to mass M2 into A. Hello? Say why we have taken the acceleration to get separate E1 and E2. I had told you that if in a question there is a pulley and pulley itself is in motion, then the acceleration of the blocks connected may not be same. तो यहाँ पे जब ये block आगे रहेगा, pulleys are connected by a massless rod from M2, and this pulley is also connected by a massless rod from M1. So along with the motion of the blocks, the pulleys will be in motion. So we are not taken the acceleration of the blocks to be same. They have been taken to be different. Now see, the main thing for which I'm making this video is now there are three unknowns, A1, A2, and T. So we need to relate the acceleration of M1 and M2. हमें एक रिलेशन निकालना होगा एक M1 और M2 के या A1 और A2 के एक्सेलरेशन के बीच। तो एक तरीका ये आप ठीक से देखना, पहले आप इस ब्लॉक को होल्ड कर लो M1 को, और M2 को आप x डिस्टेंस आगे स्लाइड कराओ। M1 को होल्ड किया और M2 को x डिस्टेंस आगे स्लाइड कराया, तो स्ट्रिंग लेंथ यहाँ पे x स्लैग करेगी, x यहाँ स्लैग करेगी, क्योंकि ये ब्लॉक और ये पुली तो अपनी जगह है, तो x लेंथ यहाँ स्लैग करेगी, 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 क्योंकि ग्राउंड का जो फिक्स्ड हुक है दैट इज आल्सो एट द सेम प्लेस, उसकी पोजीशन में चेंज नहीं है, तो सब कुछ x आगे जाएगा, तो इसकी जो टोटल लेंथ स्लैग करेगी दैट इज व्हाट 4x। जबकि आपने इस ब्लॉक को x डिस्टेंस आगे मूव कराया है, अब आप क्या करोगे, इसे होल्ड कर लो और इसे आप y डिस्टेंस आगे मूव कराओगे, इसे आप y डिस्टेंस आगे मूव कराओगे। अब इससे क्या होगा स्टूडेंट्स, इसे होल्ड किया तो y डिस्टेंस यहां इंक्रीज होगी, y यहां इंक्रीज होगी, y यहां इंक्रीज होगी,
और क्योंकि हुक भी फिक्स है और आपने इसे भी होल्ड किया, यहाँ कोई चेंज नहीं आएगा। तो इसके वाई चेन आगे मूव कराने से स्ट्रिंग की वाई लेंथ यहाँ कंज्यूम होगी, वाई यहाँ कंज्यूम होगी और वाई यहाँ पे कंज्यूम होगी। तो जो टोटल लेंथ कंज्यूम होगी दैट विल बी व्हाट, 3y। एंड यू नो दैट कि व्हेन यू अप्लाई द फोर्स F, तो दोनों ब्लॉक्स आगे जाएंगे और स्ट्रिंग विल ऑलवेज बी टाइट। दैट मींस कि इसके आगे जाने से जितनी लेंथ रिलैक्स हो रही है यानी सैग कर रही है, इसके आगे जाने से उतनी ही लेंथ क्या होगी, कंज्यूम होगी। सो दिस इज व्हाट इक्वल्स टू 3y। अब आप इसे टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हो तो 4 इंटू डी एक्स बाई डी टी वी v of m2 is equal to 3 into dy by dt will be the velocity of the block m1, that is what vm1। और जिस तरीके से डिस्प्लेसमेंट्स का रिलेशन है बिल्कुल ऐसे ही वेलोसिटी का और उसी तरीके से रिस्पेक्टिव ब्लॉक्स के एक्सेलरेशंस का रिलेशन होगा। सो 4 4a2 is equal to GE1। बच्चों यहाँ पे फिर भी आपको एक थोड़ा सा जैसे लॉजिक लगाना पड़ा कि मतलब एक कि उसे होल्ड किया फिर इसे आगे आपने स्लाइड कराया फिर इसे होल्ड किया उसे आगे। फिर एक और तरीका था, आप ठीक से समझना, एक और तरीका आई वुड से कि ये तरीका जो दूसरा है ज्यादा जनरलाइज्ड है और आप अपनी कंफर्टेबिलिटी के अकॉर्डिंगली देखना कि किस केस में आप कौन सा तरीका जल्दी से अप्लाई कर पाएंगे। लुक एट, हम लोग क्या करेंगे इस तरीके में कि कोई एक फिक्स्ड पॉइंट को रेफरेंस मान लेंगे। जैसे मैंने हुक को एक रेफरेंस पॉइंट मान लिया, हुक को क्या मान लिया, रेफरेंस पॉइंट, और हुक से इस ब्लॉक की डिस्टेंस x ले ली और हुक से इस ब्लॉक की डिस्टेंस y ले ली। अब आप x और y के टर्म्स में स्ट्रिंग की टोटल लेंथ l काउंट करो क्या होगी, मेजर करो। लुक एट दिस, ये लेंथ x है तो आप देखो हुक के लेफ्ट हैंड साइड में, हुक के लेफ्ट हैंड साइड में जितनी भी स्ट्रिंग है उसकी लेंथ होगी x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स 4x। अच्छा आप इसमें कंफ्यूजन नहीं करोगे कि आपको लगे यार ये रॉड की भी तो लेंथ है, ये लेंथ ऑलमोस्ट ये नेग्लिजिबल होती है, मतलब आपको ये मानना है ये पुली सीधे ब्लॉक से ही बस अटैच है, ये पुली सीधे ब्लॉक से अटैच है, रॉड आपको दिखाई दी है सो दैट कि ये पता लगे कि इस तरीके से अटैच है, ये सीधे पुली से अटैच है, इससे अटैच है, इससे अटैच है। दैट मीन्स कि जो ब्लॉक की डिस्टेंस हुक से x है, स्ट्रिंग की यानी लेंथ भी x है, ये लेंथ भी x है, ये x है, ये x है, इस पॉइंट तक की लेंथ इस ओर की क्या है, x। तो स्ट्रिंग की इस रेफरेंस लाइन के हुक के लेफ्ट हैंड साइड में जो स्ट्रिंग की जितनी लेंथ है दैट इज व्हाट 4x। वो लेंथ कितनी होगी स्टूडेंट्स, 4x, राइट। और जो राइट हैंड साइड में लेंथ है कितनी होगी, ये लेंथ y, तो ये y दैट बिकम्स व्हाट 3y। आप समझ गए ना, ये लेंथ इस पे ध्यान नहीं दोगे, मतलब जो ये लेंथ y है वही ये लेंथ y होगी, ये y होगी, ये y होगी, दैट इज व्हाट 3y। सो प्लस 3y is the total length of the string L। Now when you will pull this block M1, length of the string is not going to change. This was a constraint that length of the string will remain what, same। So if length of the string remains same, 4 into dx by dt is equal to 3 into dy by dt is plus, and dl by dt will be what, 0। dl by dt will be 0 because length of the string is not changing। So look at this, dx by dt will be what, x is the distance of m2 from the fixed hook। तो जिस रेट से x चेंज होगा ये इसकी वेलोसिटी होगी, m2 की वेलोसिटी होगी। सो अगेन वी गेट व्हाट, 4 of v2 minus 3 of v1 minus 3 of v1 is equal to 0। That means what, 4v2 is equal to minus 3v1। आपको v2 और v1 का रिलेशन पता लग गया
So similarly 4a2 will be equal to 3a1. माइनस साइन केवल ये इंडिकेट कर रहा है, आपको उससे नहीं आना है। माइनस साइन इंडिकेट ये कर रहा है कि जब x की वैल्यू कम होगी तो y की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। जब इनमें से एक लेंथ कम होगी तो दूसरी लेंथ क्या होगी, इंक्रीज होगी। हमें यहाँ पे b1 b2 और a1 a2 के मैग्नीट्यूड के बीच का रिलेशन पता करना। यहाँ पे ऑब्वियसली ये आगे रहेगा तो ये भी आगे रहेगा, तो दोनों की वेलोसिटी पॉजिटिव, दोनों की एक्सेलरेशंस पॉजिटिव। वी ओनली हैड टू रिलेट द magnitude of their accelerations or the velocity. So I personally feel that this method is better, but फिर भी in the simple kind of questions like this, you can use this also. आप ज्यादा मेथड भी यूज कर सकते हो, बट इस तरीके में जब और कॉम्प्लिकेशन होगा कहीं पे, तो आप एक फिक्स पॉइंट से दोनों ब्लॉक्स के आपने डिस्टेंस ली, उसके इन एक्स और वाई के टर्म्स में यू कैलकुलेट द टोटल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, फिर टोटल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग विल बी कांस्टेंट, सो उसका डीएल बाय डीटी 0 होगा, और रिमेनिंग जो लेंथ है एक्स और वाई, उनका जो टाइम डेरिवेटिव है उन ब्लॉक्स के रिस्पेक्टिव ब्लॉक्स के एक्सेलरेशंस को रिलेट करेगा। सो आफ्टर दिस इन वन मोर वीडियो are clear one more concept of the constraint condition, and with that I'll try to complete this series. All right students, all the best. So carefully watch it and understand.